explorers, welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So let us begin with the chapter number 3 of grammar, and the name of the chapter is articles, right? So हम बात करने वाले हैं इस chapter में about the articles. So what are articles? First of all, let's read this, right? So they say articles are words that are used to clarify whether a noun is specific or not specific, right? कि जब भी हम आर्टिकल्स की बात करते हैं तो वो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि हमें बताते हैं कि जिस नाउन के बारे में हम बात कर रहे हैं वो स्पेसिफिक है या फिर नहीं है, कि हम किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं या फिर नहीं, राइट? सो दे से not a specific artist or any artist, right? So यहाँ पर हमने एग्जाम्पल है, I met an artist who paints only landscapes, right? So यहाँ पर जब हम आर्टिस्ट की बात कर रहे हैं तो कोई स्पेसिफिक आर्टिस्ट नहीं है, because we haven't mentioned the name of an artist, right? It is simply an artist, right? Next, the landscape hanging on in our living room has been made by him. So यहाँ पर जिस landscape की हम बात कर रहे हैं वो एक particular picture है, right? So they say over here, this is specific picture, right? So there are 3 articles. तो totally 3 articles होते हैं grammar में, which are a, an and the, right? So we use a before the words that begin with a consonant sound, right? And we use an before words that begin with a vowel sound. So, अब ये consonants और vowel का concept हमें पता है, right? So, we have 26 letters in our English alphabets, right? Out of those 6, 5 are considered as the vowels. Next, the rest 21 letters are considered as the consonants. So, ये जो 5 vowels है, right? With these 5 vowels, we use an, correct? And with these 21 consonants, हम use करते हैं a, right? Now, what are these 5 vowels? These 5 vowels are considered as A, E, I, O and U. All these are the 5 vowels जिनके साथ हम सिर्फ an use करते हैं, right? Vowel sounds के साथ हमेशा an use किया जाता है. And the rest ones just like B, C, D, F, G, H, J and so on. All these alphabets other than these 5 vowels are considered as the consonants. और इन consonants के साथ हम a use करते हैं, right? What do we use with these consonants? A. So simply they are explaining us कि हम consonant sounds के साथ a use करते हैं और vowel sounds के साथ an use करते हैं, correct? So they say there is a park in front of my house, right? An elderly man tells us a story in the park every day. Correct? Now, moving ahead, some words may begin with a vowel but may have consonant sound. Right? कि कुछ words ऐसे हैं जो कि एक vowel के साथ शुरू किए जाते हैं but they might have a consonant sound. कुछ ऐसे words हैं जो vowel से शुरू तो होते हैं पर उनकी जो sound है वो हमेशा consonant ही दिखाई देती है या सुनाई देती है, right? In such cases, we use a before the word. और उन cases में हम उन words के पीछे an को ना use करके a का ही use करेंगे. In these cases, the pronunciation of U is YU and Y is a consonant as in unicorn, right? कि अगर हम अगर हम यहाँ पर example लें एक word जो कि है unicorn, जैसे कि इन्होंने हमें यहाँ पर दिया हुआ है. So, यूनिकॉर्न हमें दिख तो रहा है कि ये शुरू हो रहा है U से. U is a vowel, right?
बट द साउंड जो ये हमें प्रोवाइड कर रहा है वो है वाई यू की. सो दैट इज वाई वाई इज अ कॉन्सोनेंट, और इसीलिए हम इसके साथ एन को ना यूज करके वी विल यूज ए विद इट, राइट? अ यूनिकॉर्न, नॉट एन यूनिकॉर्न. करेक्ट? So we have some more examples over here. This is a unique opportunity for you to see the army camp, right? Another example also, a soldier is required to wear a uniform, right? So यहाँ पर U जो है वो है तो एक vowel, but इसकी जो sound आ रही है वो Y की आ रही है, and Y is a consonant. That is why हमने यहाँ पर a use किया है. Correct? Moving ahead, we have some words may begin with a consonant but may have a vowel sound. कि अब कुछ words ऐसे हैं जो शायद शुरू तो होंगे consonant से but उनकी sound हमेशा vowel आएगी, right? So let me explain this to you with the help of the example, right? So this is, यहाँ पर जो दिया हुआ है ये yellow box, H is silent in honorables. The word begins with the vowel sound of O, that means O, right? So इसीलिए हम honorable के साथ an use करते हैं और ना कि a, right? So we can see कि if I talk about a word which is honest man, so यहाँ पर हम honest के पीछे an use करेंगे. Why? Because H जो है वो यहाँ पर silent है. H की तो sound ही नहीं आ रही है, right? We are starting the word with O, and O is a vowel, right? Vowel के साथ हम use करते हैं, and that is why हमने honest man के साथ हमने यहाँ पर an use किया है. That is why we write an before these words, right? So let us read the examples now. The captain of the regiment is an honorable man. The soldiers are allowed to rest for an hour after their meals. Correct? Now, next we have a and an are indefinite articles. The is the definite article, right? कि a और an जो है वो actually indefinite articles की category में consider किए जाते हैं, और द जो है वो एक डेफिनेट आर्टिकल की कैटेगरी में कंसिडर किया जाता है. करेक्ट? सो व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम वी यूज एन इनडेफिनेट आर्टिकल. कि जब भी हम किसी चीज़ के बारे में पहली बार बात कर रहे होते हैं तब हम वहाँ पर इनडेफिनेट आर्टिकल्स यूज करते हैं. बट इफ वी टॉक अबाउट इट अगेन वी यूज द. जब हम उसके बारे में दोबारा बात करते हैं तो हम पर्टिकुलर हो जाते हैं कि हम इस डेफिनेट चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तब हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं, राइट? जस्ट लाइक एग्जाम्पल्स वी हैव अमन इज गोइंग विद हिज पेरेंट्स ऑन अ ट्रिप टू काजीरंगा, राइट? दे हैव अरेंज्ड द ट्रिप टू अ ट्रैवल एजेंट. कि उन्होंने जो ट्रिप अरेंज करी है वो एक ट्रैवल एजेंट के थ्रू करी है. तो यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस में जब हम ट्रिप के बारे में बात कर रहे थे तो हमने अ यूज़ किया बिकॉज वी मैंशनड द ट्रिप फॉर द फर्स्ट टाइम हियर. बट इन द सेकेंड सेंटेंस वी मैंशनड अबाउट द ट्रिप अगेन. सो दैट इज़ वाई हमें पता है कि हम उसी ट्रिप के बारे में बात कर रहे हैं जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं. दैट इज़ वाई हमने यहाँ पर द यूज़ किया है, राइट? So now they are saying कि we use the. हम the का use कहाँ कहाँ करते हैं? So let us read this. When we talk about a particular thing or person, my mother met the principal today. कि जब हम एक पर्टिकुलर थिंग या फिर पर्सन के बारे में बात कर रहे होते हैं तब हम द का यूज़ करते हैं. जस्ट लाइक माई मदर मेट द प्रिंसिपल टुडे. कि प्रिंसिपल तो एक ही है एंड वी नो कि वो क्रिस प्रिंसिपल से मिली. दैट इज़ वाई हमने यहाँ पे प्रिंसिपल के साथ द यूज़ किया है, राइट? विद अ नाउन दैट रिप्रेजेंट्स अ होल क्लास. यानी कि ऐसा नाउन जो कि पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता हो, पूरी कैटेगरी की बात कर रहा हो,
जस्ट लाइक एग्जाम्पल्स द लेपर्ड कैन क्लाइम ट्रीज। तो लेपर्ड यानी कि हर लेपर्ड ट्रीज चढ़ सकता है, राइट? तो हम किसी पर्टिकुलर लेपर्ड की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट ईच एंड एवरी लेपर्ड दैट इज प्रेजेंट, राइट? नेक्स्ट, विद द नेम्स ऑफ माउंटेन रेंजेस, ओशियन, seas, rivers, gulfs, bays and deserts, right? कि जो नेम्स हैं माउंटेन रेंजेस के, ओशियंस के, सीज के, रिवर्स के, गल्फ्स के, बेस के और डेजर्ट्स के, राइट? उन सभी के साथ हम द यूज करते हैं, जस्ट लाइक वी हैव एग्जाम्पल्स द हिमालयाज, द पैसिफिक ओशियंस, द कैस्पियन सी, the Brahmaputra, the Persian Gulf, the Bay of Bengal, the Thar Desert, etc. Right? Next we have with the names of monuments, theaters, stadiums and auditoriums. कि जब हम with the names of monument यानी कि जब हम monuments, theaters या फिर किसी भी ऐसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बात कर रहे होंगे तब भी हम द ही यूज करते हैं जब हम स्पेसिफिक नेम मेंशन करें, जस्ट लाइक एग्जांपल्स द विक्टोरिया मेमोरियल, द पृथ्वी थिएटर, द बर्बन स्टेडियम एंड द सीरी फोर्ड ऑडिटोरियम, राइट? नेक्स्ट, विद सर्टेन बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स, कि जब हम पर्टिकुलर बुक्स या फिर न्यूज़पेपर्स का नेम मेंशन करते हो तब, जस्ट लाइक कुरान, इंडियन एक्सप्रेस एंड एटसेट्रा, राइट? नेक्स्ट, with the things that are only one of their kind, just like the sun, the moon, कि जो चीज अपने तरीके की सिर्फ एक है, उसके जैसा दूसरा और कोई भी नहीं है, सो वो उनके साथ भी हम द का यूज करते हैं, जस्ट लाइक सन, मून, वी डोंट हैव एनी अदर सन और मून, राइट? नेक्स्ट, with the trains, the शताब्दी एक्सप्रेस, the अमृतसर मेल, राइट? ट्रेन्स के नाम के साथ भी द शताब्दी एक्सप्रेस, द अमृतसर मेल एंड एटसेट्रा. विद द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव, कि जब हम एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री को यूज करते हो, राइट, तब भी हम द का यूज करते हैं. जस्ट लाइक एग्जाम्पल वी हैव इवन द डार्केस्ट क्लाउड हैज अ सिल्वर रिंग, राइट? नाउ moving ahead, now we have next one. So it explains us where zero article or no article, कि कहाँ पर हमें किसी भी article को use ही नहीं करना है. So let's see, we do not use an article, कि हम कोई भी article use नहीं करते हैं. कब? With the names of sun, with the names of days, months, festivals and seasons, कि इन सभी चीज़ों के नेम्स के साथ हम कभी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं. जस्ट लाइक ऑन सैटरडे वी विजिटेड द बर्ड सेंचुरी ऑफ, ऑन सैटरडे वी विजिटेड द बर्ड सेंचुरी ऑफ कपिती आइलैंड, राइट? वी विल विजिट द बॉटनिक गार्डन्स इन द मंथ ऑफ February. On the day before Thanksgiving, we will visit the National Wildlife Center. Trees shed their leaves in autumn. So हमने देखा कि days, months, festivals या फिर seasons के पीछे हम कभी भी the या फिर a या an या फिर किसी भी article का use नहीं करते हैं, right? Next, before meals, कि अगर हम मील्स का नाम लें, जैसे कि ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर आर इंक्लूडेड इन द हॉलीडे पैकेज, तो हम इन सभी के पीछे कभी भी द यूज़ नहीं करेंगे या फिर कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे. इट कैन नॉट बी द ब्रेकफास्ट, द लंच, द डिनर, कुछ भी इंक्लूड हम लोग नहीं कर सकते हैं. करेक्ट? नेक्स्ट, बिफोर लैंग्वेजेस और सब्जेक्ट्स. अब लैंग्वेजेस या फिर सब्जेक्ट्स के पहले हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? So, Manik is studying French along with science, English and mathematics in school, right? So,
सब्जेक्ट्स या फिर लैंग्वेजेस के नाम के पीछे हम कभी भी द या फिर किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते हैं, राइट? So that was all about the chapter articles. I hope you all are clear with them and their uses as well, right? So that was all from my side. Thank you so much and have a great day ahead.